morning student, time for our English classes. Today we'll start chapter 5 in our English literature, the tiger, the Brahmin and the jackal. आज हम इस स्टोरी की रीडिंग करेंगे. So for that, open page number 32. Now read this story to know why a Brahmin has to talk to a peepal tree, a buffalo and a roe. Once upon a time, a tiger was caught in a cage. He tried in vain to get out through the bars and roared with rage and sadness when he failed. By chance, a poor Brahmin came by. "Let me out of this cage," cried the tiger. "No, my friend," replied the Brahmin mildly. "You would probably eat me if I did." "Not at all," said the tiger. "On the contrary, I should be forever grateful and serve you as a slave." Next page. Sobbed and sighed and wept. The Brahmin's heart softened, and at last he agreed to open the door of the cage. Out came the tiger and, seizing the poor old man, cried, "What a fool you are! What is to prevent my eating you now? For after being caged so long, I am just terribly hungry." The Brahmin pleaded for his life. The tiger agreed to let the Brahmin ask the first 3 things he came across to see if its action was justified. So the Brahmin first asked the peepal tree what it thought of the matter, but the peepal tree replied coldly, "What have you to complain about? Don't I give shade and shelter to everyone who passes by? And don't they tear down my branches to feed their cattle?" Then the Brahmin went farther ahead till he saw a buffalo. He asked the buffalo what it thought of the matter, but it answered, "You are fool to expect thankfulness. Look at me. While I give milk, they feed me on cotton seeds and oil cakes. But now that I cannot give milk, they keep me tied all day and do not give me fodder." The Brahmin then asked the road to give him its offer. "My dear sir," said the road, "how foolish you are to expect anything else. Here I am, useful to everybody. Yet all, rich and poor, great and small, step on me as they go past, giving me nothing but the ashes of their pipes and the husk of their grain." On hearing this, the Brahmin turned back sorrowfully, and on the way he met a jackal who called out, "Why, what's the matter, Mr. Brahmin? You look as unhappy as a fish out of water." The Brahmin told him all that happened. "How very confusing," said the jackal. "Would you mind telling me everything again? For everything seems so mixed up." The Brahmin told him everything all over again. However, the jackal still could not understand everything. "It's very odd," said the jackal sadly, "but it all seems to go in from one ear and out of the other. I'll go to the place where it all happened, and then perhaps I shall be able to give a judgment." So they returned to the cage by which the tiger was waiting for the Brahmin and sharpening his teeth and claws. "You have been away a long time," growled the tiger, "but let us begin our dinner now." "Our dinner?" thought the rich Brahmin, and as his knees knocked together with fear. "What a remarkably delicate way of putting it." "Give me 5 minutes, my lord," he pleaded, "so that I may explain the matter to the jackal here, who is somewhat slow in his wits." The tiger agreed, and the Brahmin began the story all over again, not missing a single detail and spinning as long a yarn as possible. "Oh my poor brain, oh my poor brain," cried the jackal. "Let me see, how did it all begin?" "You were in the cage?" The tiger came walking by. "Oh," interrupted the tiger, "what a fool you are! I was in the cage." "Of course,"
cried the jackal, pretending to shake with fear. Yes, I was in the cage. No, I wasn't, dear. Dear, where are my heads? Let me see. The tiger was in the Brahmin and the cage came walking by. No, that's not it either. Well, don't mind me, but begin your dinner, for I shall never understand. Yes, you shall, returned the tiger in the anger at the jackal's stupidity. I'll make you understand. Look here, I'm the tiger. Yes, my lord. And that is the Brahman. Yes, my lord. And that is the cage. Yes, my lord. And I was in the cage. Do you understand? Yes. No. Please, my lord. Well, cried the tiger impatiently. Please, my lord, how did you get in? How? Why, in the usual way, of course. Please don't be angry, my lord, but what is the usual way? At this, the tiger lost patience and jumping into the cage cried, This way. Now do you understand how it was? Perfectly, smiled the jackal as he cleverly shut the door. And if you will permit me to say so, I think matters will remain as they were. This is a very interesting story कि कैसे एक ब्राह्मण की जान एक जयकार बचाता है। होता क्या है बेटा कि एक बार एक टाइगर पिंजरे में बंद हो जाता है, ठीक है, और पिंजरे में बंद होने के बाद बहुत सारी मेहनत करते हुए भी वो पिंजरे के बाहर नहीं आ पाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि सामने सड़क पर एक ब्राह्मण जा रहा है, एक आदमी जा रहा है। उसने उसे बुलाया और कहा, आप प्लीज मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिए। अब जो ब्राह्मण है वो कह रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे खा जाओगे। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा और पूरी जिंदगी मैं आपके यहाँ गुलाम की तरह काम करूंगा, बट प्लीज आप मुझे इस केज से बाहर निकाल दीजिए, इस पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। पहले तो ब्राह्मण डरा हुआ था, उसे लगा कि अब टाइगर मुझे खा जाएगा, ऐसे ही बोल रहा होगा। लेकिन जब उसने देखा कि टाइगर बहुत ज्यादा रो रहा है, परेशान है, दुखी है, तो उसका दिल पिघल गया, उसे दया आ गई और उसने क्या किया, डोर खोल दिया। टाइगर जैसे ही बाहर आया वो एकदम खुशी से गुस्से में दहाड़ के कहता है, क्यों क्यों ना खाऊं मैं तुम्हें, क्यों ना खाऊं मैं तुम्हें, इतने देर से मैं यहाँ पे भूखा हूँ, तुम्हें क्यों ना खाऊं, और कौन बचाएगा तुम्हें खाने के लिए, मुझे मना कौन करेगा, इसलिए अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है। अब ब्राह्मण की बारी थी, वो हाथ पैर जोड़ने लगा कि प्लीज प्लीज मुझे मत खाइए, प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। तो यहाँ पे टाइगर कहता है कि ठीक है, एक शर्त पे छोड़ूंगा, तुम यहाँ से जाओ और 3 लोगों से पूछ के आओ कि मैं तुम्हें खाऊं या ना खाऊं। अगर वो तीनों लोग कह देते हैं कि ठीक है मुझे नहीं खाना चाहिए, then I'll leave you free. ब्राह्मण agreed this condition and he moved on. सबसे पहले वो पीपल ट्री के पास जाता है और बताता है कि मैं ऐसे टाइगर बंद था, मैंने उसे फ्री किया है और अब मुझे खाना चाहता है, तो क्या ये सही है, उसे मुझे खाना चाहिए। तो पीपल ट्री कहता है कि ऑफ कोर्स खा लेना चाहिए, मैं भी तो तुम लोगों को छाया देता हूँ और तुम लोग क्या करते हो, मेरी डाल मेरी पत्तियां काट के अपने कैटल्स को खिला देते हो, देन ऑफ कोर्स टाइगर को भी तुम्हें खा लेना चाहिए। ब्राह्मण को थोड़ा सा बुरा लगता है, वो थोड़ा सा और आगे जाता है और आगे जाने के बाद एक बफेलो, एक भैंस से जाके मिलता है। वहां पे भी अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि कैसे उसने टाइगर की मदद की है और अब टाइगर उसे खाना चाहता है। तो वो पूछता है कि क्या मुझे खा ले, तो बफेलो कहता है ऑफ कोर्स खा लेना चाहिए, जब तक हम दूध देते तब तक तुम अच्छा अच्छा खाना देते हो मुझे खाने के लिए, लेकिन जब हम दूध देने की सिचुएशन में नहीं रहते तो तुम क्या करते हो, गले में रस्सी डाल के मुझे किनारे बांध देते हो, फिर ना कुछ खाने को अच्छे से देते हो ना कुछ, तो तुम्हें टाइगर को भी तुम्हें खा लेना चाहिए, कह दो उससे वो खा जाए तुम्हें। बड़ा दुखी होता है, थोड़ा सा और आगे जाता है और उसे सड़क से भी पूछता है कि ऐसे मैंने टाइगर की मदद की है, क्या टाइगर को अब मुझे खाना चाहिए, मैंने उसकी मदद की है तो उसे मुझे छोड़ देना चाहिए ना। तो सड़क कहते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइगर को तुम्हें सच में खा लेना चाहिए, मैं भी तो सड़क हूँ, मैं तो किसी एक भाव नहीं करता, मैं तो सभी के लिए एक जैसी बनी हूँ, लेकिन अमीर हो या गरीब, चाहे जो जा रहा है वो मुझे बदले में क्या मिलता है,
उसके जो पाइप से एशेस आते हैं, जो धुआं है, जो क्लाउड है, जो डस्ट है, वही तो वो मुझे वापस देके जाते हैं। तो इसी तरह तुमने भी अगर टाइगर की मदद की है तो टाइगर को भी तुम्हें खा जाना चाहिए। बड़ा दुखी हुआ, 3 लोग पूरे भी हो गए थे, बफेलो, रोड एंड पीपल। अब वो एकदम उदास होके जा रहा है, रास्ते में मिलता है एक जयकार। जयकार पूछता है मन से, क्या हुआ सर, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप तो बिल्कुल ऐसे परेशान हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल तो वो परेशान हो जाती है, बिल्कुल आप वैसे लग रहे हैं, क्या बात? अब ब्राह्मण पूरी सिचुएशन बताता है कि ऐसे मैं जा रहा था, मैंने टाइगर की मदद की है, लेकिन अब वो मुझे खा लेना चाहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, कहता है ये जयकार कि मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं, आपने क्या बताया, चलिए उस जगह पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, उसके बाद हम कोई फैसला दे पाएंगे। जाते हैं दोनों, देखते हैं कि जो टाइगर है वो इंतजार कर रहा है, अपने दांत और अपने क्लॉस को जो है शार्प कर ले रहा है कि अब आज हम बढ़िया नाश्ता करेंगे। जैसे ही उसने ब्राह्मण को देखा, वो जोर से दहाड़ के कहता है कि इतनी लेट हो गई तुम्हें आने में, कब से मैं भूखा बैठा था, खैर आओ अब हम अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण के तो बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हो गए, कांपने लगा डर के मारे और कह रहा है, 1 मिनट पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं इस जयकार को लेके आया हूँ, इसे अपनी बात तो बताने दीजिए। अब वो जयकार से पूरी बात ब्राह्मण बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ था, जितना टाइम ले सकता था ब्राह्मण पूरा टाइम लेके पूरी एक एक वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन जयकार चुपचाप खड़ा है। लास्ट में कहता है, नहीं समझ में आया, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जो है बंद था यहाँ पिंजरे में और इसने मेरी जान बचाई है। जयकार कह रहा है, अब जयकार को भी टाइगर को देख के डर लगने लगा, लेकिन वो अपना डर छुपाते हुए कह रहा है कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया कि मैं पिंजरे में बंद था और मुझे बचाया। तो टाइगर कह रहा है, अरे नहीं, पिंजरे में तुम कहाँ से बंद हो गए, पिंजरे में तो मैं बंद था और इस ब्राह्मण ने आके मेरी जान बचाई। तो अब फिर जयकार कह रहा है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पिंजरा आ रहा था, बंद हो गए और फिर जान बचाई गई। कह रहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। खूब गुस्से में हो गया और कह रहा, तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि मैं इस पिंजरे में बंद था और इस ब्राह्मण ने मेरी जान बचाई। अब जयकार कह रहा, नहीं महाराज, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बताना चाहते हैं। इतनी सारी एक्सप्लेनेशन के बाद भी जयकार ये प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो टाइगर को खूब गुस्सा आ गया। अब वो इसी गुस्से में क्या करता है, जाके खुद पिंजरे में बंद हो जाता है और कहता है, देख लो, इसी तरह मैं इस पिंजरे में बंद हुआ था और इस ब्राह्मण ने मेरी जान बचाई, आप समझे। जयकार उसी बीच क्या करता है, जैसे टाइगर पिंजरे में जाता है केज में, केज का डोर को लॉक कर देता है, दरवाजा बंद कर देता है। एंड ही सेड, हाँ मुझे समझ में आ गया कि आप इसी तरह पिंजरे में बंद थे और इस ब्राह्मण ने आपकी जान बचाई। आ गई मुझे सिचुएशन समझ में महाराज, और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ज्यादा अच्छी है। ठीक है, यानी ये जो जयकार है वो क्या कर रहा था, टाइगर को, he was fooling the tiger to put him in this cage once again। वो टाइगर को वापस अपने केज में डालने के लिए ये सारी प्लानिंग कर रहा था एंड फाइनली ये सक्सेसफुल था। गुस्से में टाइगर ने गुस्से में आकर के अपना दिमाग से काम नहीं लिया और वापस उस केज में बंद हो गया और ब्राह्मण की जान बच गई। So this was only the story. Read this chapter and I hope आपको ये explanation समझ में आया होगा, आपको स्टोरी आपने enjoy किया होगा। We'll do the exercises